हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, नमस्कार। दिस इज कुणाल बोथरा और आज मैं वापस एक लाया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मैं कहूंगा इसको दिलचस्प टॉपिक 1:45 पीएम कैंडल ऑन बैंक निफ्टी। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस 1:45 पीएम कैंडल ऑन बैंक निफ्टी? इज देयर समथिंग व्हिच इज quite dramatically different which happens at this particular point of time in the markets? We will discuss all of that and I'll give you the observations for the markets in the last 5-6 days. Again, the observation is more temporary because we've seen this phenomena happening over the last 6 or 7 consecutive trading sessions, that there is something which changes dramatically at that 1:45 p.m. In a candle which is formed on the bank nifty. You can do the same observations on different indices as well as different stocks, but then this was something which was very consistently formed on bank nifty. So I thought, why not bring it out to all of you guys. So before we start, a request to all of you to ensure that you like the video, you share the video as much as possible. Don't forget to comment at the end of the video if you find the observation very intriguing and something different, एक अलग तड़का अगर आपको इसमें नजर आए तो डेफिनेटली आप इस पे कमेंट करके और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. And of course, you can do follow our channel on YouTube, and don't forget to hit the notification bell button, because when we come out with such interesting videos, it's going to be learning for all of you guys. So simple maths, when we break down, so market hours, we start off at 9:15 a.m. in the morning, the Indian markets, that is, and we close at 3:30 p.m., which means a session which lasts for 6 hours and 15 minutes. By simple math, you divide the session 6 hours and 15 minutes by 2. It comes out to be 3 hours 7.5 minutes per session. So if you do the math from 9:15, the first half of the session should be closer to 12:30 p.m. And the second half should start off from 12:30 p.m. But the market math is showing a completely different way of intraday trend, and something which, when you spot on the charts, when you see it on the charts by yourself, you would actually be quite stunned and amazed that there is something which is different and dramatic which happens at 1:45 p.m. So simple math tells us that maybe the midpoint of the day is closer to 12:30 p.m. or slightly before, but actually the market math tells us that closer to 1:45 p.m. is there is a sudden knee-jerk price action or knee-jerk change for the price action for the indices, and we'll see that in the next couple of charts. So what forms on 1:45? I term it as a trap candle. अब हमने बुलिश हैमर सुना है, हमने एनगल्फिंग पैटर्न सुना है, हमने हैमर देखा हुआ है, हमने दोजी देखे हुए, but what is this trap candle? Now this is interesting because this is what we've formed as a new pattern, or we termed it as a new pattern which is emerging, and you'll be amazed with the kind of peculiarity the candlestick has on the charts, which will be showing in the next few slides. And we've termed it, or we've broken it into two parts, and the two obvious parts, because there are two types of traps which gets laid. First, of course, is a bull trap, which we'll see. So bull trap is what? Bull trap is a point where the bulls, they expect that the markets are into a fine fettle, बहुत तेजी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है इंडाइसेस में, और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद एक नया ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, and all of a sudden that trend reverses. You see a pause, immediate pause, and you see a reversal which happens into the trend. Now let's take an example. For example, today, 23rd of March, what happened today? The Nifty at one point, just around that 1 p.m., 1:30 p.m., came close to that 17,200 levels. Bank Nifty, if I'm not wrong, was on the verge of breaking past about the 40,200 mark on the spot levels. And what happened all of a sudden? In the last 1.5 hour for the markets, there was a sudden correction for both the indices. The Bank Nifty actually slipped more than 600 points. I think 40,200 से लगभग हम 39,600 के आसपास हमने क्लोज किया बैंक निफ्टी में, और निफ्टी also reversed from 17,200 to close below that 17,100 mark. So this is what we call as a bull trap, when there is an expectation that a breakout is just about on the verge of happening or has given a false breakout, and all of a sudden you see the indices or the asset class reversing. Bear trap, on the other hand,
is where there is a completely reverse sentiment which is going on, where the markets or the index or the asset class actually going into a downward trend. It breaks a major support. We believe that, boss, if the support is broken, then possible that the markets are going to a downward trend. And all of a sudden, you see a strong uptrend, which not just engulfs the new bears or the ones who have recently shorted, but it also tries to cover up their short positions quite strongly. Bear traps generally are very strong, very vicious. The candles are quite big, quite huge, because that's what we say, that short covering generally is a very quick kind of a phenomena as compared to long unwinding. तो हम अनवाइंड हमारी पोजीशंस को बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली करते हैं. हम वेट करते कि शायद मार्केट बाउंस करेगा, शायद बाउंस करेगा. फिर जब हम गिव अप कर जाते हैं, जब मार्केट एक लेवल को, एक मेजर सपोर्ट को तोड़ देता है, उसके बाद हम गिव अप करके हमारी पोजीशंस को अनवाइंड करते हैं. बट जब कोई शॉर्ट्स जब ट्रैप हो जाते हैं, तो देन दे क्विकली, बिकॉज द मार्केट्स दे टेंड टू राइज वेरी स्विफ्टली, so they tend to unwind their positions also very quickly, and that's why short covering with जो रैली होती है वो जनरली ज्यादा स्विफ्ट, क्विक और निम्बल होती है. So this is what happened on 23rd of March, which is today, on the Bank Nifty. So as you can see, I have taken the entire intraday session for the index. The left hand side से अगर हम चालू करेंगे तो 9:50 से जब ट्रेडिंग एक्टिविटी चालू हुई थी, तो 39,800 के आसपास जब बैंक निफ्टी ओपन हुआ था, slowly, steadily, gradually, as you can see, the bank nifty keeps on moving up higher. There is a very slow, gradual movement. Just around that 1:30 odd p.m., the bank nifty comes very close towards breaking the 40,200 mark. I think intraday spot levels पे शायद हमने break भी किया 40,200 का levels. But उसके बाद क्या हुआ? All of a sudden, at that yellow circle mark, which was at 145 odd candle, वहां से हम देख रहे हैं कि मार्केट्स ने कंप्लीटली अपने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया. तो लिटरली पिक्चर इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स. वन इज द ट्रेंड व्हिच वाज प्रायर टू 145 एंड द अदर वाज अ ट्रेंड व्हिच वाज आफ्टर 145 पीएम. अब सबसे इंट्रिगिंग पार्ट है द कैंडल व्हिच हैपेंस जस्ट वन टिक बिफोर द एक्चुअल ट्रेंड रिवर्सेस, व्हिच मींस द बॉक्स व्हिच आई हैव मार्क्ड इट एंड टर्म्ड इट एज अ ट्रैप कैंडल. अब ट्रैप कैंडल जनरली क्या होता है? ट्रैप कैंडल होता है when the markets or the index is heading towards a breakout or is just about the verge of confirming a breakout. तो हमें ऐसा लगता है दो माइल्ड बेरिश कैंडल, सडनली एक बुलिश कैंडल आ रहा है, तो मतलब इस बार तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस को तोड़ ही देगा. बट उसके बाद क्या हो जाता है? एक बेरिश पैटर्न आता है, और बेरिश पैटर्न आने के बाद में मार्केट्स जनरली सेल ऑफ कर जाता है. सो दैट ट्रैप कैंडल is what in this case is a bullish trap candle, because the bulls who were hoping that the Nifty or the Bank Nifty would probably try and break out, they were trapped into that particular moment. And then because of that trap, you see the pace of selling initially being a bit slow, and then at the last 15, 20, 30 minutes or so, the pace of selling intensified. तो अगर हम 3 PM की कैंडल देखो, तो 3 PM की कैंडल मैग्नीट्यूड वाइज कितनी ज्यादा बड़ी है as compared to a candle which was formed at 2 PM. So that's why I said that जब unwinding of positions होती है, या जब लॉन्ग प्लेयर्स अपने पोजीशंस को अनवाइंड करते हैं, तब इनिशियल रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है, थोड़ा सा होप होता है, और जब लास्ट में मार्केट से एक मेजर सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाते हैं, तब सेलिंग काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है और कैंडल्स बहुत ज्यादा स्टीप बनते हैं. This was the candle which was actually on 22nd of March, which is yesterday. So आप देख रहे हो कि 1:45 PM के आसपास जब मार्केट ने ट्रेंड बनाया, तो उसके बाद से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया डाउन साइड में. वन कैंडल बिफोर द ट्रैप कैंडल व्हिच वी टर्म इट ट्रैप कैंडल, आप देखो तो मार्केट्स, द बैंक निफ्टी हैज कंफर्म्ड अ ब्रेकआउट. 40,050 के आसपास हमने एक हाई बनाया था. तो अगर हम उस हाई का लेवल्स देखें, तो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे वो ओपनिंग के लेवल से हाई आ गया था बैंक निफ्टी. तो ये इंडिकेशन था कि शायद बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर रहा है. और जैसे ही उस बैंक निफ्टी कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ट्रैप कैंडल बनाया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन 40,050 के आसपास से बैंक निफ्टी में करीबन 200 पॉइंट की सडन करेक्शन या सडन गिरावट आ गई है. तो ये अगेन इंडिकेट कर रहा है कि 1:45 और 2 PM को जो एक फॉल्स कैंडल बन रहा है, जो एक ट्रैप कैंडल बन रहा है, उस ट्रैप कैंडल का जो इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है
वो बहुत ही शॉर्ट टर्म और लिमिटेड है, उसकी इंपैक्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन ट्रेंड रिवर्स हो जाता है. Are these the only two examples? You would be amazed that there are few different examples sets. Now this, for example, is a point where the trap candle is actually showing that the bank nifty is about to reverse. तो अगर हम देख रहे तो 4 या 5 कैंडल स्टिक हमने देखा कि बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी आई थी. 12 बजे से हम देख रहे कि बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आई थी. वहां से एक्सपेक्टेशंस था कि 39,400 से हम 39,750 350 पॉइंट की रिकवरी के बाद में सडनली देयर इज अ करेक्शन. और करेक्शन भी देखो तो पूरा एक बेरिश एंगल्फिंग बना दिया है. तो टेक्निकली बेरिश एंगल्फिंग इंडिकेट करता है कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा. बट व्हाट हैपेंस पोस्ट दैट, ऑल ऑफ अ सडन द बेरिश एंगल्फिंग, जो बेयर्स जो अपनी पोजीशंस को इनिशिएट कर रहे थे, जो बुल्स अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर रहे थे, वो ट्रैप हो गए वहां से. और एग्जैक्टली एट दैट फॉर्मेशन ऑफ दैट येलो सर्कल कैंडल, वहां से हम देख रहे कि बैंक निफ्टी की ट्रेंड्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट हो गई थी अपसाइड में. तो इसे हम कहेंगे बेयर ट्रैप फॉर्मेशन. सिमिलर हुआ था बेयर ट्रैप फॉर्मेशन 20th ऑफ मार्च को. हम जानते हैं 20th ऑफ मार्च को मार्केट्स ने कितनी फाइन तरीके से इस पूरे वीक को हमने जब ट्रेड किया था. 20th ऑफ मार्च को जो सेशन था वो काफी वॉलेटाइल था और काफी आई वुड से हाई फ्रीक्वेंसी मूवमेंट्स हो रहे थे इंडाइसेस में. 145 के आसपास अगर हम देखेंगे वापस से तो दो बड़े कैंडल्स बन रहे थे. बैंक निफ्टी डे लो पे ट्रेड कर रहा था. 39,000 के लेवल्स को भी हमने ब्रेक कर दिया था. तो टेक्निकल पैरामीटर्स, साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स, राउंड फिगर्स के हिसाब से सारे पॉइंट्स अगर हम देखें तो वहां पे एक ब्रेक डाउन सिग्नल आ रहा था. पर उसके बाद क्या हुआ, 1:45 PM के बाद जब हम बैंक निफ्टी की रिकवरी देख रहे तो एक सडन क्विक स्विफ्ट रिकवरी आ गई और करीबन 500 से 600 पॉइंट की रिकवरी थी बैंक निफ्टी में. 38,900-950 के आसपास से बैंक निफ्टी करीबन 39,450 तक रैली कर चुका था इन द लास्ट 1.5 आवर. तो अगेन ये इंडिकेशन कर रहा है कि जो 1:45 PM के आसपास की कैंडल बन रही है वो एक सडन नीजर एक्शन हो रहा है. बट जो एक्चुअल ट्रेंड बन रहा है उसके बाद में वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है बैंक निफ्टी में. Same phenomena happened again in the span of that 1 PM to 2 PM candle on 17th of March, which was the previous Friday. बैंक निफ्टी ने नया लो बनाया. 39,000 का लो हमने वापस से ब्रेक किया उस दिन पे बैंक निफ्टी में. इनफैक्ट हम देख रहे कि कितने बड़े हायर अपर शैडोज हो रहे हैं बैंक निफ्टी के कैंडल्स में. तो ये इंडिकेट कर रहा था कि जो रैलीज है, जो माइल्ड बाउंस भी आ रहा है, वो सस्टेन नहीं हो रहा है और बार बार सेलिंग हो रही है. बट उसके बाद अगेन देयर इज अ सडन कैंडल मूव जहां पे बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दे दिया. तो जो ट्रैप जोन बन रहा था, जहां पे एक निराशाजनक ट्रेड हो रही थी, बुल्स हताश हो रहे थे, बेयर्स ओवर पावर कर रहे थे ट्रेंड्स को कंसिस्टेंट बेसिस पे, ऑल ऑफ अ सडन दैट ट्रेंड, दैट बिहेवियर चेंजेस क्वाइट ड्रामेटिकली ऑन द बैंक निफ्टी. 16th ऑफ मार्च वेरी सिमिलर. तो अगर हम ट्रैप कैंडल की बात करें तो जो हम ट्रैप कैंडल में जो आप अपर शैडोज देख रहे हो, उसके बाद की जो सेलिंग देख रहे हो, वो दो कैंडल्स को अगर हम क्लब करके देखें तो बैंक निफ्टी में ट्रेंड जो था वो रिवर्स हो गया था. बट उसके बाद एक सडन बाइंग की सर्ज आ रही है और 38,900 से 39,350, तो करीबन 450 पॉइंट की रैली. ये छोटा मोटा फीट नहीं होता है. 1% की रैली in a span of 15 to 30 minutes is a huge quantum for an intraday trader. Because यहाँ पे और जनरली हम बात कर रहे हैं in strong psychological marks, 40,000, 39,000, 39,500. These are all strong psychological levels for the indices. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना बनते जा रहा था बैंक निफ्टी में. 15th ऑफ मार्च को भी बहुत ही सिमिलर ऑब्जर्वेशन. बैंक निफ्टी ट्रेंड डाउन कर रहा था. ऑल ऑफ अ सडन 145 कैंडल के जस्ट पहले बैंक निफ्टी ने एक अपवर्ड ट्रेंड दिया. तो यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा था कि शायद इस बार बैंक निफ्टी में ट्रेंड रिवर्स हो जाएंगे और 39,200-300 के आसपास एक मीनिंगफुल बाउंस आ सकता है. बट उसके बाद हम देखें कि तो लगभग इन द नेक्स्ट 1 आवर बैंक निफ्टी सोल्ड ऑफ फ्रॉम 39,500 अप्रोक्सीमेटली टू इवन सब 39,000. तो 1 से 1.5 घंटे में हम 450 से 500 पॉइंट की करेक्शन देख रहे हैं. तो अगर हम लास्ट 5 से 6 दिन की कंसिस्टेंट फिनोमिना देखें तो एक ही ट्रेंड उभर के आ रहा है
कि जो एक ट्रैप कैंडल बन रहा है वो कंप्लीटली डिफरेंट कैंडल बन रहा है एज कंपेयर टू द ट्रेंड जो उसके बाद लेआउट हो जाता है। 20th ऑफ मार्च को हमने देखा कि एक बुल ट्रैप बन रहा है जहां पे बुल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट होगा, ऑल ऑफ अ सडन ट्रेंड डिक्लाइन हो गया। 22nd ऑफ मार्च वेरी सिमिलर कैंडल, बुल्स को लगा इस बार तो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद में ट्रेंड डिक्लाइन हो जाता है। 21st ऑफ मार्च को रिवर्स हो गया था, बेयर्स ट्रैप हो गए थे, बैंक निफ्टी एक ऑलमोस्ट एक इंट्राडे लो के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहां से हमने देखा कि लास्ट 1.5 आवर में 1:45 पीएम के बाद में हमने देखा कि कैंडलस्टिक में अचानक से फुर्ती आ गई और बैंक निफ्टी ने एक इंट्राडे बहुत अच्छी रिकवरी की, करीबन 400 से 500 पॉइंट की रिकवरी की। सेम वाज द केस ऑन 20th ऑफ मार्च, 17th ऑफ मार्च एंड 16th ऑफ मार्च। तो ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि जो 1:45 पीएम की कैंडल है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग है। इंडेक्स सडनली एक नी जर्क प्राइस एक्शन में ट्रेड करता है करीबन 1:45 पीएम के आसपास, जहां पे जनरली ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द डे, प्रॉफिट्स को बुक करने का ट्राई करते हैं, नए ट्रेडर्स ब्रेकआउट के लिए वेट करते हैं। तो काफी सारे मिक्स्ड सेंटिमेंट्स और मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज वहां पे प्ले आउट कर रही है। बट हम देखते हैं कि वहां पे ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ ट्रैप व्हिच गेट्स लेड आउट एंड द ट्रैप मेक्स यू, फोर्सेस यू टू कट और टू कंटिन्यू योर पोजीशंस। तो अगर हम बुलिश थे मार्केट्स में, हम अपनी पोजीशंस को लॉन्ग को बरकरार रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन द ट्रेंड रिवर्सेस लाइक व्हाट यू सॉ टुडे। On some other days when there is a sudden knee-jerk price action and the candle reverse, we tend to cut our positions, we tend to book our profits, and all of a sudden the bank nifty moves in the or continues to be in the same direction. तो हम वो last 45 minutes, last 1 hour के आसपास का जो ट्रेंड होता है हम उसको सिग्निफिकेंटली मिस आउट कर लेते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग बिहेवियर था। यहाँ पे एग्जिट होना बहुत डिफिकल्ट है, उसे हम इसके लिए हम कह रहे थे कि लास्ट 1.5 आवर को ट्रेड करना और मार्केट को जज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। बट हम देख रहे हैं कि ये कंसिस्टेंट पैटर्न लास्ट 6 डेज में प्ले आउट कर रहा है, द 1:45 पीएम इफेक्ट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रैप कैंडल। सो आई होप you like this very interesting video. Let's hope that we observe the same phenomena in the next few sessions, and if so, do mention to write in your comment, and don't forget to like as well as share the video. Thank you so much guys, have a great day.